A very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts of the subject economics. Dear students, in the previous lecture, we have started our 11th chapter out of the book Introductory Macroeconomics. And the name of the chapter was Foreign Exchange Rate. So, dear students, just in a very fast track, just have the recap of the previous lecture. In the previous lecture, we have discussed about the concept of meaning of foreign exchange. We have discussed about the foreign exchange rate, its definition, and then we have discussed about the flexible rate of exchange and determination of flexible rate of exchange, under which the demand for foreign exchange and supply of foreign exchange used to play a vital role. In the last but not the least, we have discussed the equilibrium rate of exchange with the help of diagrams. Dear students, today we are going to proceed about the chapter. Today in our 21st lecture, we are going to discuss about the impact of change in demand and supply. So, dear students, before understanding what will be the impact, let us understand some basic concepts such as increase in demand for foreign currency, what is decrease in demand for foreign currency, what is increase in the supply of foreign currency, and so on. So, dear students, just see over here, increase in demand for a foreign currency occurs. ये कब होता है बेटा? When more of it is demanded at the existing price. जब सेम एक्सचेंज रेट पे फॉरेन करेंसी की डिमांड बूस्ट अप हो जाती है, राइज हो जाती है, दैट इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड. सो द वाइस वर्सा विल बी द डिक्रीज इन डिमांड. व्हेन the demand for the foreign currency decreases at the existing exchange rate or at the existing price, it is known as decrease in demand. Now the next one, increase in supply. It is situation when foreign currency or the supply of foreign currency occurs or it increases at the existing price. जब existing price पे existing exchange rate पे foreign currency की supply market में increase होती है, then it is known as increase in supply. Then, dear student, what will be the decrease in supply? So, see, when at the existing exchange rate or at the existing price, the supply of foreign currency decreases or come downs, then it is known as decrease in supply. So, initially we have discussed the four basic elements. What is increase in demand for foreign currency? What is decrease in demand for foreign currency? What is increase in supply of foreign currency? And what is decrease in supply of foreign currency. Now we will discuss the impact of change in demand and supply in the form of four situations. The very first situation is impact of increase in demand for a foreign currency. जब किसी foreign commodity करेंसी की डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? दैट इज अ डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. लेट अस डिस्कस ये कैसे होता है. You can see a diagram over here. The demand is indicated with the blue curve and the supply is indicated with the dark blue curve. That is the point of equilibrium, and as soon as the demand increases, इनिशियली डी आपका डिमांड कर्व था, अब जो न्यू डिमांड कर्व है इंक्रीज डिमांड के साथ, दैट इज़ द D1. तो क्या हुआ? लेट अस सी द डिस्कशन और द डिस्क्रिप्शन. डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम D टू D1. जो हमारा डिमांड कर्व था वो D से D1 शिफ्ट हुआ. इससे क्या हुआ? जो हमारा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट था, है ना, वो क्या हो गया? OR से इंक्रीज होके कहाँ पहुँच गया? OR1 पहुँच गया. एंड नाउ इसका रिजल्ट क्या हुआ? ऊपर आप देख सकते हैं एज्यूम एक्सचेंज रेट दे रखा है. सो नाउ अब हमें एक $1 को $1 को परचेज करने के लिए इनिशियली वी यूज टू पे 60 रुपीज़. अब हमें कितने पे करने पड़ेंगे? नाउ वी हैव टू पे ₹70 पे करना पड़ेगा फॉर द सेम फॉरेन करेंसी. सो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ करेंसी डेप्रिशिएशन. ये किसकी सिचुएशन है? करेंसी डेप्रिशिएशन की सिचुएशन है. नाउ अ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज द करेंसी डेप्रिशिएशन? So dear students, let us understand. Currency depreciation refers to a situation. ये वो situation होती है जब डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट्स. जब डोमेस्टिक करेंसी, फॉर एग्जांपल इंडिया के कंटेक्स्ट में वो रुपीज़ है,
डेप्रिशिएट्स दैट मीन्स उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी, किसी भी फॉरेन करेंसी। यहाँ पे इसने एग्जाम्पल के लिए डॉलर ले लिया है, वो दिनार भी हो सकता है, वो येन भी हो सकता है, वो यूरोज भी हो सकता है, कोई भी फॉरेन करेंसी हो सकती है। देन इट इज़ नोन एज करेंसी डेप्रिशिएशन। एक बार दोबारा समझ लीजिए, जब फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है, डेप्रिशिएट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं करेंसी डेप्रिशिएशन। जैसे कि पहले आप 60 रुपीज़ में एक डॉलर परचेज कर पाते थे, लेकिन अब आपको सेम वही डॉलर परचेज करने के लिए फॉर एग्जाम्पल आपको 80 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये कि आपकी करेंसी की वैल्यू पहले के कंपैरिजन में क्या हो गई, कम हो गई। इसी को बोलते हैं करेंसी डेप्रिशिएशन। Now see the second situation, impact of decrease in demand for a foreign currency। अब अगर जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाए, प्रीवियस सिचुएशन में क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी। नाउ हियर द सिचुएशन विल बी जस्ट अपोजिट, डिमांड डिक्रीज हुई है। डिमांड डिक्रीज होने से क्या हुआ, जो आपका इक्विलिब्रियम है दैट शिफ्टेड फ्रॉम OR टू OR1। अब इसमें देखिए, नाउ $1 इज़ अवेलेबल फॉर ₹50। इनिशियली कितने का पे कर रहे थे हम लोग, 60 रुपीज़ पे कर रहे थे, बट नाउ इट इज़ ऑफ ₹50 ओनली। तो ये कौन सी सिचुएशन है, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ करेंसी एप्रिशिएशन। ये क्या है, करेंसी एप्रिशिएशन। प्रीवियसली करेंसी डेप्रिशिएशन था, अब करेंसी एप्रिशिएशन है। सो अगेन अ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ द करेंसी एप्रिशिएशन। देन सी ओवर हेयर, it refers to a situation when domestic currency appreciates or gain its value। जब डोमेस्टिक करेंसी अपनी वैल्यू को गेन करती है इन कंपैरिजन टू एनी फॉरेन करेंसी, देन इट इज़ नोन एज करेंसी एप्रिशिएशन। क्या बोलते हैं बेटा, करेंसी एप्रिशिएशन बोलते हैं। नाउ सी द थर्ड सिचुएशन, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाए, यू कैन सी द डायग्राम, द ग्रीन कलर सप्लाई कर्व इंडिकेट्स द इंक्रीज सप्लाई दैट इज़ फ्रॉम S टू S1। तो देखिए जो है क्या है, जो सप्लाई कर्व शिफ्ट फ्रॉम S टू, ये बेटा D1 लिखा, इट विल बी द S1, ठीक है। एंड दिस कॉजेज अ फॉल इन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। जो आपका इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है वो OR से डिक्रीज होकर कितना पहुंच गया, OR1 पहुंच गया। इसका मतलब ये, इनिशियली आप एक डॉलर को 60 रुपीज़ में परचेज करते थे, नाउ यू आर एबल टू परचेज द सेम डॉलर इन ₹50 ओनली। आप कितने में परचेज कर सकते हैं उसको, 50 में परचेज कर सकते हैं। सो इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ करेंसी एप्रिशिएशन। कौन सी सिचुएशन है बेटा, ये करेंसी एप्रिशिएशन की सिचुएशन है। सी द नेक्स्ट पॉइंट, द फोर्थ पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। जो फॉरेन करेंसी है उसकी सप्लाई डिक्रीज हो रही है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, बट ऑब्वियसली इट विल बी जस्ट वाइस वर्सा ऑफ द प्रीवियस सिचुएशन। लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं बेटा। देखिए सप्लाई इंक्रीज हुई है एंड एज अ रिजल्ट, एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ है, आप ये देखिएगा कि जो आपका सप्लाई कर्व है वो S से S1 शिफ्ट हुआ है। एज अ रिजल्ट जो आपका एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम OR टू OR1। और अब क्या हुआ, पहले एक $1 आपको 60 रुपीज़ का मिलता था, अब आपको कितने का मिल रहा है बेटा, 70 का मिल रहा है। इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ, कौन सी सिचुएशन है, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ करेंसी डेप्रिशिएशन। कौन सा है, करेंसी डेप्रिशिएशन की सिचुएशन है। सो वी हैव डिस्कस द 4 सिचुएशन। कौन कौन सी सिचुएशन थी बेटा, एक बार उनको देख लेते हैं। फर्स्ट थी आपकी इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज हुई थी, उसमें हमारा डेप्रिशिएशन आया था डोमेस्टिक करेंसी का। सेकेंड सिचुएशन जो देखी, दैट वाज इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, उसका रिजल्ट आया था एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। थर्ड वाज द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, इम्पैक्ट था एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एंड द फोर्थ एंड लास्ट सिचुएशन दैट वी हैव डिस्कस, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, और उसका इम्पैक्ट था दैट इज द डेप्रिशिएशन ऑफ domestic currency. Now the last small topic of the today's lecture, that is the difference between appreciation and depreciation of domestic currency। दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अगर हम एप्रिशिएशन की बात करें तो कौन कौन सी कंडीशन में एप्रिशिएशन आता है, देयर आर 2 कंडीशन। फर्स्ट, इट इज़ सिचुएशन ऑफ फॉल इन एक्सचेंज रेट, जब आपका एक्सचेंज रेट फॉल होता है, ठीक है। और डेप्रिशिएशन कब होता है, जब आपका एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है। एप्रिशिएशन कब होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट के डिक्रीज होने पे। डेप्रिशिएशन कब होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट के इंक्रीज होने पे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, लेस रुपीज़ आर नीडेड टू बाय 1
फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी को परचेज करने के लिए लेस डोमेस्टिक करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है एप्रिसिएशन में, और डेप्रिसिएशन में मोर डोमेस्टिक करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। इसने कॉजेज़ बताए हैं, देखिए 2 कॉजेज़ हैं आपके एप्रिसिएशन के। फर्स्ट, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड सेकेंड, डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। इन द सेम वे डेप्रिसिएशन के भी 2 कॉजेज़ हैं बेटा। द फर्स्ट, इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस हो गया एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल।